Hello, students. Today we are going to study the second chapter of Economics, class 10, Sectors of the Indian Economy. Sectors. Sector means the part of a whole. पूरे का एक हिस्सा को हम सेक्टर या खंड में कहते हैं. And here the sector means the part of the economy in which the economic activities are performed. As you know very well, every person, every moment in their life are engaged in some type of activities, and all those activities can be classified into two: economic activities and non-economic activities. Economic activities are those activities which are related with earning money, income or profit for the satisfaction of the needs. Actually, and as you know, as a student of economics, you must know that income is generated through production. There is no other way to generate income. Therefore, production is the main activity. Production of goods and services is the main activity of the economy, on which the people's livelihood depends. These activities can be classified into three categories. Some activities in which goods are produced with the help of natural resources mainly, but not entirely. The other activities in which these natural resources are turned into finished goods through different ways of manufacturing. And third one is different type of services which are necessary for the first and second category of activities. Now let us see the first category of activities in which goods are produced with the help of natural resources. Look here, are called primary activity or primary sector. Second, in which the natural resources or raw material are turned into finished goods by ways of manufacturing, is called secondary sector. And tertiary sector, third one, is or service sector. So there are three sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector, secondary sector or tertiary sector or service sector. Now let us discuss one by one. Try to understand primary. With an example of, suppose according to your book, the cultivation of cotton, it takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. कि अगर कपास की खेती करनी है
तो उसके सीजन में ही उसकी खेती होगी, दूसरे सीजन में हो नहीं सकता। उसके लिए मुख्य रूप से हमें नेचर पर आधारित होना है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन मुख्य रूप से। जैसे वर्षा के लिए धूप या मौसम, ये तो नेचर से ही प्राप्त होगा। भूमि की उर्वरा फर्टिलिटी वो नेचुरल है। इसलिए इससे जो इस तरह के फैक्टर से जो चीज़ उगाए जाते हैं, जिसमें कॉटन या शुगर केन या जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, ऑल आर नोन एज द नेचुरल प्रोडक्ट। Some other related activities like dairy, we are dependent on biological process of animal. Without breeding or biological process, no any female animal can give milk, and so many other processes are availability of fodders, biological process of animal fodders की माने उसके भोजन चारे की उपलब्धता, क्वालिटी, etc. The product here, milk, also is a natural product. Milk is also a natural product. Similarly, minerals or ores are also natural product, because whatever minerals we have or we dig out from the mines, which is known as ores, are not man-made. It is natural. And when we produce goods by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. Means primary sector, the sector where the goods are produced by the exploitation of natural resources. Here, mark one thing. By the exploitation of natural resource. Why the word exploitation is used here? Because we use natural resources without any permission of nature, without taking care the availability or total amount, quantity, or its effect on nature, environment, on etc. So it is known as exploitation. जैसे अगर कोई आपकी कोई वस्तु जबरदस्ती आपसे छीन ले बिना पूछे हुए, तो उसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह आजकल या शुरू से मनुष्य प्रकृति के इन संपदाओं का शोषण करता रहा है, इसीलिए इसे एक्सप्लॉयटेशन। तो प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जहां प्राकृतिक साधनों का शोषण करके वस्तुएं बनाई जाती है। अब प्रश्न है कि व्हाई इट इज कॉल्ड, तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सेक्टर आएंगे, तो प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सभी आ जाते हैं। बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटी, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग, उत्खनन, ये सभी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। तो अब प्रश्न है कि व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी। इट इज नोन एज प्राइमरी बिकॉज इट प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट बी subsequently makes, कि यह उन सभी चीजों का के उत्पादन का बेस देता है, आधार देता है, जो हम बाद में बनाते हैं, तदुपरांत बनाते हैं, सब्सिक्वेंटली मेक, मतलब इसके बाद बनाते हैं, प्राइमरी के बाद, इसलिए इसे प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक। क्योंकि यह नहीं होगा तो आगे का कोई भी उत्पादन संभव नहीं हो सकता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर
from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also known as agriculture or related sector. इसीलिए इसे एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी हम कहते हैं. Now come on the second sector, secondary sector. As its name is clear, secondary, द्वितीयक, प्राइमरी प्राथमिक, द्वितीयक. तो द्वितीयक, फॉर एग्जाम्पल, cutting trees is primary activities in the forest because trees grow in the forest naturally. But making logs and carrying them from forest outside the forest, all these activities are under secondary activities. Meaning, secondary covers activities in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associated with industrial activities. कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में, या हम कह दें तो फिनिश्ड गुड में, इट फॉर्म्स natural products are changed into other finished goods through ways of manufacturing activities. कि कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जैसे पेड़ काटना तक मान ली प्राइमरी एक्टिविटी है, तो उसके बाद उसका टुकड़ा बनाना, उसको बाहर लाकर उससे फर्नीचर बनाना, तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं वो सभी सेकेंडरी एक्टिविटी में आएंगे क्योंकि वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. और फिनिश गुड्स के लिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वी कांट प्रोड्यूस एनीथिंग बट वी क्रिएट, या मैन क्रिएट यूटिलिटी, एंड दैट इज नोन एज प्रोडक्शन. इन प्रोडक्शन नथिंग इज डन बट बाय चेंजिंग द शेप, साइज, बाय यूजिंग द स्किल एंड बाय changing the time, we create some more utility and this is called production. कि प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी रॉ मटेरियल में कुछ खास विधियों के द्वारा, जैसे समय परिवर्तन करके, स्थान परिवर्तन करके, उसके आकार, रूप, रंग को बदलकर हम अपने ज्ञान से, तरह तरह के औजार के प्रयोग से उसमें उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं. जैसे कॉटन, कपास जो खेत में उगता है वो अगर छोड़ दें तो उड़ जाए, उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर मनुष्य उसी कॉटन को धागा बनाता है. कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट, वी स्पिन यार्न, वीव क्लॉथ यूजिंग, तो अब उसके बाद फिर उस धागा को कपड़ा में बनाते हैं. तो हर जगह हर तरह का प्रोसेसिंग होता है. तो जैसे शुगर केन, चीनी बनाने के लिए रॉ मटेरियल है शुगर केन, जो किसान खेत में उगाते हैं नेचुरली, और उसके बाद उस शुगर केन का कटिंग, कैरिंग, फिर प्रोसेसिंग करके या तो शुगर बनता है या गुड़, जैगरी बनता है. तो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. कि मिट्टी से हम ईंट बना लेते हैं, ईंट से घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. इस तरह यह जो है सेकेंडरी एक्टिविटी है. सेकेंडरी एक्टिविटी सिंस दिस sector gradually become associated with the different kind of industries that come up. कि यह अनेक प्रकार के औद्योगिक कार्यों से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है. इसमें जगह जगह औद्योगिक उपाय करते हैं, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है. मीन्स सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. नाउ द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी, दिस इज ए सेक्टर इन विच वी डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स, थ्रू विच no any good is produced. Goods are produced only primary or secondary sector. But in tertiary sector, we provide
माने ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रोवाइड हेल्प सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अन्य प्रकार की जो सहायता की आवश्यकता होती है, उसे उन सभी हेल्प को हम टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में कहते हैं। कि यह गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, माने अगर कोई प्राइमरी सेक्टर में कहीं गुड्स बना या सेकेंडरी सेक्टर में, तो उसमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो इस तरह तरह की आवश्यकताएं हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, एनी गुड्स, बट दे आर एन एड और हेल्प और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन और इसके अलावा भी कुछ और सर्विसेज हैं जिसमें हम लेते हैं। दैट्स ऑल।